Hello friends, today we are going to learn about collection of data. First chapter in statistics in 11th commerce. So what is statistics? Statistics is the science which deals with the collection, analysis and interpretation of statistical data. So the statistical is a science. Science means specialized knowledge. Science always having some rules and principles. So statistics has its own rules and principles. So the first word statistic was used by Gottfried Eikenwall in 1749. But in India, Professor P.C. Mahalanobis played a major role for the development in India statistics. So, P.C. Mahalanobis played a major role for the development in India. So, P.C. Mahalanobis started in 1931 Indian Statistical Institute in Kolkata. Now this institute collect a lots of data, and for research this ISI institute play a major role. P.C. Mahalanobis started postgraduate in statistics in 1941 in Calcutta University, and government had approved National Sample Survey created by P.C. Mahalanobis in 1950. So statistics, so we often use statistics in our routine life, like when 10th result declared, we collect a data about marks, percentage, how many students got A1 grade, A2 grade, B1, B2 grades, and we make analysis that result of school, result of Gujarat board. So this is the statistics. तो बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस है, क्योंकि साइंस के जो खुद के रूल्स और प्रिंसिपल है, सो स्टैट के भी खुद के रूल्स और प्रिंसिपल है, एंड स्टैटिस्टिक इज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कई बार हम भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। जब आपकी 10th का रिजल्ट आया तो आप स्कूल के अंदर विजिट करते हो, आपके कितने मार्क्स से, परसेंटेज कितने, आपके फ्रेंड्स से उसके मार्क्स परसेंटेज कितने हैं, उसका इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो। जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आपके लिए डेटा है। फिर आप उसका एनालिसिस करते हो कि क्लास में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, आप एनालिसिस करते हो। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, सो इन डे बाय डे इन रूटीन लाइफ वी यूज्ड स्टैटिस्टिक्स। Now some of the words. First, in population, a group of all units under study is called population. A group of all units under study is called population. For example, if we study the living condition of workers in Reliance Industries, if we visit personally and collect the information about the living condition of workers working in Reliance Industries, so at that time workers of Reliance Industries are under study, that is called population. अब जिसकी भी स्टडी करना चाहते हो वो यूनिट अंडर स्टडी वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा।
जैसे क्लास टीचर है, जब क्लास के अंदर अटेंडेंस लेने के लिए क्लासरूम के अंदर आता है तो उसको जानना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एंड एब्सेंट। तो उसके सामने जो स्टूडेंट है वो अंडर स्टडी हो जाएंगे। सो एट दैट टाइम दिस स्टूडेंट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नाउ द सेकंड important one, size of population. The total numbers contained in the population is called the size of population. So the total numbers contained in the population, आप जिसकी भी स्टडी करना चाहते हो उसमें टोटल कितने यूनिट है। So the total number of units contained in the population, that is size of population. Suppose if we study the living condition of workers in the Reliance Industries, if we visit personally and collect information about living condition of Reliance Industries workers, and suppose there are 500 workers are working in Reliance Industries, so 500 workers under study, that is population, and the 500 numbers, it is called size of population. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर विजिट करते हो, आपको लिविंग कंडीशन जाननी है वर्कर्स की, तो वर्कर्स आपके पॉपुलेशन हो जाएगा। और सपोज 500 वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं तो 500 वर्कर्स, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। देन फाइनाइट पॉपुलेशन, इफ द टोटल नंबर्स of units of population is finite, means limited, we call as a finite population. So when total number of units is countable, limited, आपके पास जो भी population है उसके जो यूनिट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। So that is called finite populations. Like number of students in Himmat High School or number of students in Hiramani High Schools. So the students आप easily calculate कर सकते हो, तो वो आपके लिए finite population हो जाएगी। Suppose Reliance Industries के workers है, उसके लिए आपकी living condition जाननी है, तो Reliance Industries के workers आपके लिए population हो जाएगा। अगर 500 वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं तो वो साइज ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा। और वहां जो वर्कर्स है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मींस नंबर ऑफ वर्कर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज आर लिमिटेड, आर फाइनाइट, यू कैन इजीली कैलकुलेट, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। देन सैंपल, अ सेट or group of unit selected from population is called sample. So sometime we use the sample, a set or group selected from a population, that is called sample. Suppose Reliance Industries के अंदर 500 वर्कर्स काम कर रहे हैं और उसमें से आपने 5 वर्कर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया। सो टोटल वर्कर्स वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्री, दैट इज 500, बट इफ यू सिलेक्ट 5 वर्कर्स, सो दैट इज कॉल्ड सैंपल। एंड नाउअडेज मैक्सिमम सैंपल आर यूज्ड इन अवर रूटीन लाइफ। सपोज आपको स्टेशनरी परचेज करनी है तो आप स्टेशनरी शॉप पर जाओगे तो स्टेशनरी आपके लिए अंडर स्टडी हो जाएगी, तो वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगी। अब शॉप के अंदर बहुत सारी स्टेशनरी अवेलेबल है, लेकिन आप सभी स्टेशनरी चेक नहीं करते। आपने 2, 3 या 4 नोटबुक ली या टेक्स्ट बुक लेकर आपने सिलेक्शन किया, तो वो हो जाएगा आपके लिए सैंपल। जब भी आप बीमार होते हो, डॉक्टर बोलता है कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आप ब्लड टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में चले जाते हो। तो जो लेबोरेटरी में जाते हो उस डॉक्टर के लिए आपका जो ब्लड है वो अंडर स्टडी, वो पॉपुलेशन है, लेकिन वो क्या
करता है, आपकी जो बॉडी है उसमें से 5 ml या 10 ml लेता है। सो 5 ml and 10 ml टेकन फ्रॉम पेशेंट, दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो रूटीन के अंदर सैंपल बहुत यूज होता है। जब आपकी मम्मी मॉर्निंग में आपके लिए खाना बनाती है तो उसको जानना है कि खाने में टेस्ट सही है, तो उसमें से कुछ 1 चम्मच वो लेकर टेस्ट कर लेती है। तो उसने 1 चम्मच लिया तो वो उसके लिए हो जाएगा सैंपल। अ सेट और ग्रुप सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड सैंपल। नाउ साइज ऑफ सैंपल, the numbers of units in the sample is termed as the sample of size. It is denoted by small n. Size of population as a capital N. So the number of units contained in the sample, आपने जो सैंपल लिया उसका साइज डिसाइड करता है सैंपल साइज। जैसे मेरे को ये मार्कर पेन परचेस करनी है, मैं स्टेशनरी शॉप पे चला गया तो उस दुकान के अंदर बहुत सारी मार्कर पेन अवेलेबल है, आर्ट लाइन की है, रोटोमैन की है, रेनॉल्ड्स कंपनी की है, सर बहुत सारी कंपनी है ये इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये मार्कर पेन जो है वो मेरे लिए अंडर स्टडी हो जाएगी, तो वो मेरे लिए पॉपुलेशन है। लेकिन सभी मार्कर पेन में चेक नहीं कर सकता। अगर मैंने 1-2 कंपनी है उसकी मार्कर पेन ली तो वो मेरे लिए सैंपल हो जाएगी। और सपोज मैंने ऐसी 2 पेन सिलेक्ट की है तो वो हो जाएगा मेरे लिए साइज ऑफ सैंपल, क्योंकि बहुत सारी मार्कर पेन अवेलेबल थी, आपने सभी मार्कर पेन चेक की तो वो पॉपुलेशन इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन उसमें से आपने सिर्फ 2 ही ली है तो वो आपके लिए हो जाएगा साइज ऑफ सैंपल। डेटा, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। सो द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, अगर आपने इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, आपने इंस्पेक्शन किया, डायरेक्ट इंक्वायरी की या इनडायरेक्ट इंक्वायरी की, और वहां से जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आपके लिए डेटा हो जाएगा। सपोज आपको 11th कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो 11th कॉमर्स में आपको एडमिशन लेना है, आप कोई स्कूल के अंदर चले गए, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि भाई स्कूल का टाइम क्या है, स्कूल का फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनका सिलेबस सब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म क्या है। तो आप वहाँ पर जाते हो, इंस्पेक्शन करते हो और वहाँ से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आपके लिए डेटा हो जाएगा। और रूटीन लाइफ में आप बहुत सारा ऐसा डेटा आप कलेक्ट करते रहते हो। जब 10th का रिजल्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए डेटा हो जाएगा। जब बोर्ड को 10th की या 12th की एग्जाम लेनी है तो उससे पहले वो सभी स्कूल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देयर एड्रेस, मीडियम, सब्जेक्ट, इंटरनल मार्क्स। तो वो जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं वो उनके लिए डेटा हो जाएगा। Now the variables, if the measurement of characteristics varies from unit to unit, such characteristics is called variable characteristics. Variable, vary means different. So if any measurement of characteristics different varies from unit to unit, so such characteristics is known as a variable characteristics. ऐसा कोई भी मेजरमेंट हो वो यूनिट टू यूनिट चेंज होता रहता है। जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट, अब एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट है तो सभी की हाइट सेम नहीं होगी।
आप हाइट की कंपैरिजन करो तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट हाइट थोड़ा बहुत चेंज होता रहता होगा. सो सच कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरमेंट दैट इज वेरिएबल लाइक वेट ऑफ स्टूडेंट. तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेट चेंज होगा. देयर मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन तो वो भी डिफरेंट होगा. सो सच कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जिसकी वैल्यू यूनिट टू यूनिट चेंज होती रहती है तो वो आपके लिए हो जाएगा वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज न्यूमेरिकल is then it is called numerical or quantitative variable. Example, height, weight, age. So if the variable characteristics is in numerical form, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिल रही है, so that is called numerical data or you can call quantitative data. जैसे आपको एक स्टूडेंट है उसके 10th के मार्क्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे कि भाई आपके कितने मार्क्स आए, तो आपको जो भी डेटा मिलेगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होगा. तो वो न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा है. अगर आपको किसी की एज जाननी है तो एज की जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलेगी. अगर आपको किसी का परसेंटेज जानना है तो परसेंटेज की इंफॉर्मेशन भी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलेगी. तो हाइट, वेट, मार्क्स, परसेंटेज, दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल फॉर्म. So that is called numerical data or you can say quantitative data. Now, if the variable characteristics is non-numeric, then it is called qualitative variables. Sometimes when we collect information and some of the information which we collect that is non-numeric, so you can also call attributes, because some of the information you cannot measure in the terms of numerical form, like honesty, cleverness, love, feelings. These information are not in numerical form. कई बार आपको information ऐसे भी मिलेगी जो numerical form के अंदर नहीं होगी. जैसे honesty, किसी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी है तो आप क्या बोलोगे कि बहुत ऑनेस्ट है, वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बट उसकी ऑनेस्टी आप न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर नहीं बोल सकते. कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स है, वो टॉप है, नंबर 1 स्टूडेंट है, तो उसके जो मार्क्स का डेटा मिलेगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होगा. लेकिन उसकी जो क्लेवरनेस है, वो कितना क्लेवर है, उसकी इंफॉर्मेशन तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं मिलेगी. आप बोलेंगे वो बहुत वेरी क्लेवर है, वेरी वेरी क्लेवर है, बहुत होशियार है पढ़ाई के अंदर, तो उसकी क्लेवरनेस आपको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर नहीं मिल सकती. फीलिंग्स, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी आपके प्रति जो फीलिंग्स है, तो वो फीलिंग भी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर नहीं मिलेगी. तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है या आप उसको एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एक न्यूमेरिकल है और एक नॉन न्यूमेरिकल है. आपको कोई भी डेटा अगर न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर मिलता है तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है, एज, हाइट, वेट. एंड इफ एनी मेजरमेंट आर नॉन न्यूमेरिक, so that is called qualitative variable, like honesty, cleverness, love, feelings. These are qualitative variables. So friends, in this lecture we discussed about the collection of data and statistics, definition, population, size of population, finite population, sample, size of sample, data, variable. So I hope this information is useful
and these terms are very important in statistics subject. So thank you very much.